topic is significant figures. First, I will explain what is significant figure. Then, we will discuss how to calculate how many significant figures are there in any number, in any given number. Then, we will discuss rules for addition, subtraction, multiplication and division. So, let me start. What is significant figure? If you want to define what is its definition, look at here. Significant figures are those digits in a measurement that are known reliably, which are reliable digits, plus the first digit that is uncertain. Let me explain first this, which are the reliable digits and which are uncertain digits. Suppose this is one metallic plate. If I want to measure the length of this plate, then I can measure by using this type of scale. If you will observe, reading is coming like what? This length is coming, this is 3, 1, 2 and then between 2 and 3. Means if I write 3.2, then it is not exact. Maybe it is, this length is between what? 2 and 3, 3.2 to 3.3 में कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 3.2 पे नहीं है. तो ऐसे कोई भी मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट जो हम मेजर करते हैं, ये वाला, दैट वी कांट से इट इज रिलेबल, इट इज अनसर्टेन. मीन्स उसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं मिली है, हमने अप्रोक्सीमेटली लेके यहाँ पे मेजरमेंट लिखा है. So this digit, last digit is always known as what? Uncertain digit. This 3 is exact. For 3 I am sure कि 3 centimeter तक की length तो है ही. But after that, for this digit I am not sure. So this type of digit is known as what? Uncertain digit, and this is what? Reliable. Suppose कोई length है 35.6 centimeter. So 35, these two digits are reliable digits, but this is what? Uncertain. But if I count how many significant figures are there, then it will come 3. Because we have to add, क्या करना है हमें? Reliable digit plus the first uncertain digit. These two are reliable and this is uncertain. So ये 3, यहाँ पे total 1, 2 and 3. 3 significant figures are there. Now there are some rules to calculate the number of significant figures in a given number. How to calculate means कितने significant figures है. ऐसे questions भी पूछते हैं, MCQ में भी आ सकता है. तो first let me explain the rules to calculate the significant figure. We are using decimal number system. In decimal number system, we are having digits like what? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are total 10 digits in decimal number system. This 1 to 9 all are non-zero digits. This is what? 0. So all non-zero, first rule is what? All non-zero digits are significant. Means suppose if I write the number like this, 4, 2, 3, 5, 6.78. So here all these are non-zero digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total significant figure in this number is what? 7. So all non-zero digits are significant figures. So this is clear cut कि all non-zero digits are significant figures. Now you have to remember the rules for the 0. In some cases 0 we can consider as significant, and in some cases we are not considering as a significant. So for that, let me explain rule to check whether given 0 is significant or not. For zeros, how to check? Look at here.
First remember this way only. Zeros which are in between non-zero digits, which are in between non-zero digits. Means suppose if I give the example of this, like 1 2 0 3 4. So in this case 1 2 3 4, this are non-zero digits, so they are significant, but we have to talk about now only about zeros. This zero is in between two non-zero digits, so this zero we have to consider as significant figure. So here total 5 significant figures are there. Now suppose if I give one more example, यहाँ पे 1 4 2 0 3 0 4. Then how many significant digits are there? 1 2 3 4 5 6. 6 significant digits are there. All zeros which are coming in between two non-zero digits are significant. So these are what? Significant. This we have to consider as significant. Now leading zeros. Leading zeros means suppose यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो कोई एक नंबर है 0.0234. So these two are leading zeros. It is not in between any non-zero digits. यहाँ पे non-zero digits के बीच में था, पर यहाँ पे क्या है? आगे है. तो all leading zeros are not significant figure. मीन्स इसमें मुझे इसको significant figure count नहीं करना है. तो this is non-significant. Means here how many significant digits are there? Only 3. इसमें कितने significant figures है? Only 3. These are not significant figures. I am giving one more example. Suppose if I write 0 1 2 5 6. Here how many significant figures are there? This is non-zero, 0, but it is leading 0, so it is non-significant. So 1 2 3 4. So here 4 significant figures are there. So now I discuss about leading zeros. Now there are some trailing zeros also. So for trailing zeros, there are two more. ट्रेलिंग zeros में decimal places भी है, without decimal place भी है. First we can talk about with decimal place, with decimal places, then without decimal places. अगर ट्रेलिंग zeros है, but ट्रेलिंग zeros में डेसिमल प्लेस है, उसके बाद ट्रेलिंग zeros है, लाइक 456.200. तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. दिस 2 zeros आर ट्रेलिंग zeros. ओके, नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे दिस 4 आर non-zero digits. So 4 significant figures तो है, but now we are talking about this 2 zeros. So this 2 zeros are trailing zeros and it is coming after decimal places. So here 1 2 3 4 5 6. So there are total 6 significant figure. I am giving one more example. Suppose ऐसा कुछ दिया है 0.1215.680. Here also this 0 is trailing 0.
So this we have to consider as significant. This all are significant only. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 significant figures. One more I am giving. Suppose 304.5.020. Look at here. Here this are non-zero digits, तो वो तो significant है. This 0 is in between non-zero, तो ये भी significant है. This 0 is also in between two non-zero digits, तो ये भी significant है. This is trailing 0, but trailing 0 कहाँ पे है? After decimal places, तो this is also significant. तो total significant figure is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 significant figures. Now we can talk about the without decimal places. Without decimal places means suppose ऐसा कुछ नंबर दिया है 89000, 89,000. तो 89 है यहाँ पे. This 3 are trailing zeros. ये ट्रेलिंग जीरोस है, बट यहाँ पे कहीं पे डेसिमल प्लेसेस नहीं है. तो जो जब ट्रेलिंग जीरोस हो बट विदाउट डेसिमल प्लेस है, तो दिस वी कैन कंसिडर एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पे कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? ओनली 2. ये 2 सिग्निफिकेंट है. दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल. सपोज इफ आई राइट 30510. So in this case, this 0 is in between non-zero, तो ये significant है. But this is trailing 0 without decimal place, so this is not significant figure. So how many significant figures are there? This 4. So there are 4 significant figures. So I am repeating again all the rules. First one is what? All non-zero digits. All non-zero means 1, 2, 3 up to 9. All these are what? Significant. If any 0 is in between non-zero digits, then it is significant. If all leading zeros, whether decimal place is there or not, all leading zeros are non-significant. If trailing zeros are there, then trailing zeros with decimal places are significant, but without decimal places are non-significant figure. Without decimal places का एक और एग्जाम्पल भी ले सकते like this. 2.3 into 10 to the power 5. तो in this case जब कोई नंबर 10 to the power समथिंग में दिया है, तो ये जो पावर वाला पार्ट है, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट. ये नॉन सिग्निफिकेंट है. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2. सो आंसर इज 2. सो इन केस ऑफ 10 to the power something given, then also we have to consider total number of significant figures according to this number, not 10 to the power something. Okay. If I convert one system, one more rule remember, if I convert one system of unit into another, then also number of significant figures will remain same. Like suppose there is one 12 kg. 12 kg is there. If I convert 12 kg into gram, so 12 kg if I will convert into gram, then what will come? 12,000 gram. Or I can write 12 into 10 to the power 3 gram. Look at here, according to this rule, this 2, here also 2 significant digits. If I convert this into gram, then also only 2 significant digits, because trailing 0 without decimal point तो non-significant है. 10 to the power 3 भी we are not considered as a significant. So here also 2 significant figure. Means if I convert one system of unit into another, then also number of significant figures will not change. Number of significant figures will not change. So keep in your mind, because this type of question is coming, state the number of significant figures for following. So if given suppose ऐसा कुछ number दिया है, तो you have to count how many number of significant figures are there and then you have to write. MCQ होता है तो उसमें कंफ्यूज करते, ऑप्शन ऐसे देते हैं कि आपको कंफ्यूज करे. लाइक इसमें एक ऑप्शन 3 हो, एक ऑप्शन 5 हो,
ऐसा कुछ ऑप्शन दे तो यू कैन कंफ्यूज. तो ऑल रूल्स यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर. ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा याद रख लोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा. जीरोस के लिए ही सिर्फ याद रखना है पर्टिकुलर. ओके, देन नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग राउंडिंग ऑफ. Now before starting calculation, let me explain rounding off, because if we do the calculation according to significant figure then we have to change the number of digits in result. तो result में number of digits change करने के लिए आपको उसको round off करना पड़ेगा. तो before starting calculation, first try to understand the rules of rounding off, how to round off any number. सपोज कोई नंबर दिया है 234.56 एंड वी हैव टू राउंड ऑफ दिस इन 4 डिजिट्स. मीन्स ये जो है उसको मुझे 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है. देन व्हाट टू चेक, यहाँ पे 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स इतने नंबर्स में मुझे राउंड ऑफ करना है. तो वी हैव टू चेक, आई हैव टू ड्रॉप दिस नंबर, मुझे ये डिजिट्स ड्रॉप करना है. देन वी हैव टू चेक कि ये जो ड्रॉप करना है वो नंबर वेदर इट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. इफ इट इज ग्रेटर देन 5, अगर ये ड्रॉप नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसका प्रेसिडिंग नंबर रेज होगा 1 से. यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 234.56, तो ये जो 6 है, दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो 5 होगा वो इंक्रीज होगा 1 से. तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ द आंसर विल बी 234.6. ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 1. नाउ आई एम गिविंग वन मोर एग्जांपल. सपोज 723.84. दिस इज वन नंबर. दिस ऑल्सो अगेन आई हैव टू राउंड ऑफ इन 4 डिजिट्स. मुझे 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है. तो लुक एट हियर, दैट मीन्स 4 डिजिट्स मीन्स यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स है. सो आई हैव टू ड्रॉप दिस डिजिट, मुझे ये डिजिट ड्रॉप करना पड़ेगा. दिस 4 इज लेस देन 5. इफ द ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5 तो क्या करना है, आगे का नंबर उसका प्रेसिडिंग नंबर एज इट इज रखना है. मीन्स ये द आंसर ऑफ दिस इज 723.8. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इफ ड्रॉप डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो प्रेसिडिंग डिजिट इंक्रीज होगा बाय 1, बट अगर इफ इट इज लेस देन 5 देन प्रेसिडिंग डिजिट विल रिमेन एज इट इज. नाउ सपोज ये ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन 5, दिस इज लेस देन 5, बट इफ इट इज एग्जैक्टली 5, सपोज 782.365. यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स है, मुझे उसको राउंड ऑफ 5 डिजिट्स में करना है. मीन्स उसको मुझे 5 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है. तो आई हैव टू ड्रॉप 1 डिजिट. ये डिजिट मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा. बट दिस डिजिट इज व्हाट, ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5. अगर ड्रॉप डिजिट 5 है देन वी हैव टू चेक व्हाट, प्रेसिडिंग डिजिट. प्रेसिडिंग डिजिट क्या है, प्रेसिडिंग डिजिट इज even. यहाँ पे क्या है, even. If preceding digit is even, then we have to simply drop this number without changing preceding digit. Means अगर ये even number है तो मुझे इसमें कुछ change नहीं करना है. Answer will be what, 782.36. This is the answer. 6 as it is रहेगा, इसमें कुछ change नहीं आएगा. Why? Because it is even. और जो हमें ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट कौन सा है, 5. तो जब 5 हो तब हमें 5 को नहीं, उसकी प्रेसिडिंग डिजिट को देखना है कि प्रेसिडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है. अगर इवन है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये ड्रॉप कर देना है लास्ट डिजिट, बाकी के सब डिजिट एज इट इज लिख देना है. पर सपोज कोई नंबर दिया, उसमें गिवन नंबर इज लाइक दिस
487.235। इसको मुझे 5 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। तो ये टोटल कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। तो मुझे ये नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर मैं ये नंबर ड्रॉप कर रही हूँ तो ये 5 है, इसलिए मुझे उसका प्रेसिडिंग नंबर चेक करना पड़ेगा। प्रेसिडिंग नंबर कैसा है? ऑड है। दिस इज ऑड नंबर। प्रेसिडिंग नंबर इज ऑड नंबर। प्रेसिडिंग नंबर जब ऑड हो तब हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रेज बाय 1। प्रेसिडिंग नंबर को 1 नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स अभी क्या था? 3 था, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? रेज बाय 1 मीन्स 4 कर देना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? 487.24। So these are the rules of rounding off. According to our requirement, we have to round off. Suppose मुझे एक नंबर दिया है 246.3879। मुझे इसको बोला कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? 5 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। 5 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है तो मुझे पहले ये ड्रॉप करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतने ही डिजिट्स 5 डिजिट्स में ही ड्रॉप करना है, तो मुझे ये 2 नंबर ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आई विल ड्रॉप दिस 9 इज ग्रेटर देन 5। तो इफ आई ड्रॉप दिस डिजिट देन आई विल गेट दिस नंबर। दिस इज ग्रेटर देन 5, सो दिस विल इंक्रीज बाय 1। तो आफ्टर ड्रॉपिंग आई विल गेट दिस नंबर। अगेन हियर 6 डिजिट्स आर देयर। आई वांट इन 5 डिजिट्स, so I have to drop this digits also. This digit is again greater than 5, so I have to increase this number. So last answer is 246.39. So this is the final answer which I want in 5 digits. So this way how many number of digits are there? इतने भी number of digits हो, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया कि इतने डिजिट्स में राउंड ऑफ करो, तो अकॉर्डिंग टू दैट 1 बाय 1 सब ड्रॉप करके हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो वी विल यूज दिस राउंडिंग ऑफ इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम रूल इज देयर। मीन्स व्हेन वी ऐड 2 नंबर और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम अदर, whatever final result will come, वो फाइनल रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रखने हैं उसके लिए रूल है। तो व्हाट इज देयर? द फाइनल रिजल्ट शुड रिटन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस याद रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करना है कि कौन से नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है। जितने नंबर दिए, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने, add 17 point, this one first one 17.35 gram with 25.6, then 8.498, like this. These 3 numbers I have to add. If I add this 3 number, तो 3 numbers में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कौन से नंबर में? ये नंबर में है। 25.6 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल प्लेसेस मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे ये तीनों नंबर में, इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स है, इसमें आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट, ईयर 3 डिजिट। तो हमें जो फाइनल आंसर आए वो फाइनल आंसर में जो नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है उतने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। आवर आंसर विल कम लाइक दिस 51.448. तो इन आवर रिजल्ट, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट में आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 3 डिजिट्स है, पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें कितने रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं जितने लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे सिर्फ एक है,
तो यहाँ पे 3 है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो मुझे 3 को राउंड ऑफ करके 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अगेन आई हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ राउंड ऑफ विच आई डिस्कस जस्ट नाउ. 8 इज वॉट ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है तो आगे का नंबर रेज होगा 1 से, तो 51.45. नाउ this 5, this is 5, this is equal to 5. When the last drop digit is equal to 5, then we have to check what preceding digit. Preceding digit क्या है, even है कि odd है. If preceding digit is even, then we have to drop this last digit without any change in preceding digit. अगर odd होता तो मुझे इसको भी रेज करना पड़ता. तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 51.4 ग्राम. सो इन दिस केस नाउ एक्चुअल एडिशन करने के बाद तो हमें ये आंसर मिला, बट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर दिस इज द राइट आंसर. तो अगर एमसीक्यू में दिया है 51.448 ऑप्शन, एक में दिया है 51.4 ऑप्शन, एक में दिया सपोज 51.40, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं. तो विच वन इज राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर. तो अभी तो एमसीक्यू आ रहा है बोर्ड एग्जाम में भी, तो स्कूल एग्जाम में भी आएगा. तो यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू इन विच you can confuse. So better remember the rules. In addition and subtraction, what is there, जो नंबर में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है उतने डेसिमल प्लेसेस फाइनल रिजल्ट में रखने हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या है, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 36.8 फ्रॉम 97. सो 97.00 आई कैन राइट 36.8. ये दोनों नंबर में इसमें एक डेसिमल प्लेसेस है, इसमें एक भी नहीं है, तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इसमें, 0. मीन्स इसमें एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रखना है हमें. जो भी आंसर आए उसमें एक भी डेसिमल प्लेस नहीं रखना है. तो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस देन हियर इट विल कम 206. So answer is 60.2. बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें कितने रखना है, इसमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस ये नंबर में 97 में, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है. दैट मीन्स हमें जो आंसर आए फाइनल रिजल्ट उसको ऐसे नंबर में राउंड ऑफ करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी डिजिट ना रहे. तो ये नंबर क्या है, 2. तो 2 इज लेस देन 5. तो सिंपली वी हैव टू ड्रॉप दिस नंबर. तो आंसर इज व्हाट, 60 किलोमीटर. सो दिस आंसर इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग. इफ यू राइट दिस आंसर देन इट इज रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर. सेम वे हियर आल्सो. सो रिमेंबर दिस रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. हियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल नॉट मैटर. आपका जो फाइनल रिजल्ट आए उसको राउंड ऑफ करके कितने डिजिट्स में या कितने सिग्निफिकेंट फिगर में या कितने डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल इज डिफर. हियर व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई टू नंबर और डिवाइड एनी वन नंबर बाय अदर, व्हाटएवर फाइनल रिजल्ट विल कम, इन दैट फाइनल रिजल्ट जितने भी नंबर दिया है उस नंबर में से लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो नंबर में है वो सिग्निफिकेंट फिगर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट को. आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5 विथ 0.250 इज देयर. सो इफ आई मल्टीप्लाई 0.250 विथ 2.5 then I can get 0.625 is the answer. In case of these two numbers which we are multiplying, 2.5 में significant figures 2 है और 0.250 में significant figures 3 है. तो ये जितने भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर्स में सबसे कम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये नंबर में, दैट इज 2. तो जो भी आंसर आए उसको मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा.
तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मुझे यहाँ पे 2 डिजिट ही चाहिए, मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए, तो उसके लिए मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, सो फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉप दिस डिजिट। इफ आई ड्रॉप दिस डिजिट, दिस इज 5, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, प्रेसिडिंग डिजिट। प्रेसिडिंग डिजिट क्या है, इवन है। अगर ये प्रेसिडिंग डिजिट इवन है तो सिंपली वी हैव टू ड्रॉप 5 विदाउट चेंजिंग प्रेसिडिंग डिजिट, तो आवर आंसर इज व्हाट, 0.62. so this is our answer. We can't write this 0.625, answer we have to write 0.62 according to significant figure. Now same rule we have to apply for division also. Suppose I have to divide 0.999 by 3. So if I divide 0.999 by 3, then here I will get answer that is 0.333. If I check significant figures, so in this case we have 3 significant figure, यहाँ पे 1 significant figure है, तो out of this 2, this is the least significant figure. तो जो भी आंसर आए, फाइनल रिजल्ट आए, उसको मुझे लेस सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव टू डू राउंड ऑफ। फर्स्ट में 3 को ड्रॉप करूँ तो 3 इज़ लेस देन 5, तो मुझे एज इट इज़ 0.33 आ जाएगा। अभी वापस मुझे सिर्फ यहाँ पे अगेन 2 डिजिट है सिग्निफिकेंट फिगर, मुझे 1 में कन्वर्ट करना है, तो ये डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर इज 0.3. सो दिस इज आवर आंसर 0.3. सो रिमेंबर, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जितने भी नंबर दिए हुए यहाँ पे, वो सब नंबर में से जो नंबर का लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, उतने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइनल रिजल्ट में लाना है राउंड ऑफ करके। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल। सपोज ऐसा कुछ नंबर दिए है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 253.6 मल्टीप्लाई बाई 3, 4, 5, 6, 7, 8.9 समथिंग, ऐसे 3 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आंसर आए, इसमें कितने डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दिस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आए, वो फाइनल रिजल्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बाय डूइंग राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करके मुझे लास्ट में उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल रिजल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम इज देयर फॉर डिवीजन ऑल्सो। सपोज हम कुछ डिवीजन कर रहे हैं 4 5 7 8.29 डिवाइड बाय 3 2 3 0 2.05। तो here we are having 6 significant figure, here we are having 5 significant figure। तो least significant figure कितना है, 5। तो जो भी आंसर आए, फाइनल रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। तो रिमेंबर ऑल द रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑल्सो एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है, दैट इज़ व्हाट, जो भी फाइनल रिजल्ट आए उसमें हमें क्या चेक करना है, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में रखना है। ये डिफरेंस है। सो टेक केयर फॉर दिस, ऐसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए सिग्निफिकेंट फिगर की, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो। Now this is one example of combination both multiplication and division. Here question is what, calculate the following with due regards for significant figures. 1.53 we have to multiply with 0.9995 and then we have to divide this with by 1.592. As it here multiplication and division is there, so we have to follow the rule of multiplication and division. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न हमें क्या चेक करना है कि कितने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन से नंबर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है,
वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइनल रिजल्ट में राउंड ऑफ करके लाना है. तो फर्स्ट लेट मी चेक ऑल द नंबर्स. ये इन दिस नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसका जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ये आ रहा है. आंसर में 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो मैं ये आंसर नहीं लिख सकती बिकॉज इट इज़ गिवन ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू रूल मुझे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आई हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर. तो मुझे पहले ये ड्रॉप करना पड़ेगा. 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 0.96057 ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा. तो 5. नाउ दिस इज़ 5, ये ऑड नंबर है, तो ये एक इंक्रीज़ हो जाएगा. तो 96058. 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अगेन ये इंक्रीज़ हो जाएगा. तो 0.9606. We have to reach up to 3 significant figures. Still 4 significant figures are there. So again I have to do round off. This is greater than 5. So preceding number will increase by 1 to 0.961. So this is our final answer. So I hope you understood all the rules properly. Whenever it is given due regard for significant figures, whatever answer will come, we have to follow all the rules, addition, subtraction or multiplication division rules, and then only we have to write the final answer. Thank you for watching the video, and if you like this video, please subscribe, share and like it.